Ji, Samik everyone. Today's second session is about reading through phonetics techniques, and Miss Amna Shabir will continue this session. So we will start the session after 2 minutes, inshallah. Ji, Miss Amna Shabir, you can start now. Thank you. Assalamu alaikum, everyone. I hope I'm audible to everyone. Please raise your hand if I'm audible or make a thumbs up sign so that I could know. Thank you very much. You can lower your hands now. I'm just going to share my slides with you people. So, Assalamu alaikum again, everyone. मेरा नाम आमिना शबीर है, and I've been associated with the field of education from last more than 20 years. I worked in different organizations at different designation. Currently, I'm working as a principal of one of the esteemed schools here in Islamabad, and I'm also associated with one of the schools network as an academic consultant. And I am certified trainer for from Oxford University Press as well for their ORT. And other than that, I've just completed my international certification about curriculum design and development. This is basically CPD course, and it is credited from UK. And I've done my psychology as well, degree in psychology and degree in English language teaching. And currently, I'm also in learning phase, and I'm doing my speech and language therapy from one of the organization. So thank you so much for Ideas platform. They actually showed their faith and trust on my capabilities, and they asked me to present a session in which I could perform at my best level. हम अभी स्टार्ट लेते हैं मुझे थोड़ा सा आप ये गाइड कर दें शैल आई स्टे ऑल इन इंग्लिश और कैन आई बी बाइलिंगुअल उर्दू और इंग्लिश मिक्स so if you say yes to me you can thumbs up so that I could see on my screen that how many people agree to that I should remain bilingual और जिनके hand raising please lower your hands when I ask the question so you can raise the hands Abhi, you can just send me a reaction of a thumbs up so that I should know that I should remain bilingual. Thank you. I can see many messages here on the screen as well. Thank you very much. चलें जी, let's start. अल्लाह के नाम से शुरू करेंगे हम. بسم الله الرحمن الرحيم
ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. अच्छा, अभी मुझे कुछ पार्टिसिपेंट्स चाहिए जो कि हमारे लिए एक पोम है ऑन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन. वी आर हियर टू लर्न फ्रॉम ईच अदर. ये बात ज़हन में रखिएगा, हम सारे यहाँ पर एक दूसरे से सीखने आए हैं. सो कैन यू रेज योर हैंड्स. अच्छा चलें, एक और काम करते हैं. जनवरी में जिन लोगों की बर्थ है, रेज योर हैंड्स. दोज हु आर बोर्न इन जनवरी, प्लीज रेज योर हैंड्स. I can see many people. Okay, let me start from Zulfikar. Zulfikar Ali. Zulfikar Ali, unmute your mic, please. Okay, I think Zulfikar has some problem with the microphone, maybe. Okay, this is Syed A. Hifza Batul. Hifza Batul. Okay, Zarfishan. देखिए, हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो सेशन मजे का नहीं रहेगा, सिर्फ मैं ही बोलती रहूंगी. हेलो. जरफिशा, हेलो. थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगी प्लीज आप. हेलो, आवाज जी आ रही जी जी जी, यू आर ऑडिबल. है? मैंने अब इसको रीड करना है. जी मैम, आपने ना बिल्कुल जो लेफ्ट कॉलम है ना, हेयर इज सम प्रोनाउंसिएशन, आप ये वाला कॉलम आउट करेंगी और सही. थोड़ा सा ऊंचा, एंड मेक श्योर थोड़ा सा रिदम के साथ हो ताकि हम कनेक्ट कर सकें विद द लास्ट वर्ड्स ऑफ ईच लाइन. Here is some pronunciation. Ratio never rhymes with nation. They prefer but preferable, comfortable and vegetable. We must not be here in doubt. Depth and dumb both leave it out. In the word psychology, psychic and psychiatry, you must never sound the P. Psychiatrist, you call the man. Thank you very much, ma'am. Okay, anyone else? Ma'am, can I? January born people, Yes, ma'am. please. Next column, the right side. Ma'am, can I? Yeah, please. Who is that? Can you call out your name, please? Nisha Wazir. Please carry on. The second one? G, the second one on the right side. Okay. Who cures the complex if he can? In architecture is K. In arc, it is the other way. Please remember to say iron so that it will rhyme with line. Advertisers advertise. Advertisements will put you wise. Time when work is done is leisure. Fill up with useful pleasure. Accidental, accident. Sound the G is ignorant. Relative but a relation. They can creature but creature say. creation. Very nice. Then Thank you. say So this is creature a but poem about creation. English pronunciation. Thank you. Here is some pronunciation. And there were few mistakes that I'm just recalling them. Prefer and preferable, comfortable and vegetable. We do not say
E after G, it's vegetable. B must not be heard in doubt. That and dumb, both leave it out. So dumb ke end pe B is silent. And then we had another word. Here I can say, yes, please remember to say iron so it will rhyme with lion. Advertisers advertise advertisements. And then the last one, then say creature but not creation. Thank you. February born, raise your hands. And those who are January born, please lower your hands. And February born. I can see many January and February as well. चले जी February born पे आ जाए. Mubashra Usmani. Okay, ma'am. Start say. No, this is the next page now. Wear you a see that? boot upon your foot. Yes, ma'am. Wear a boot upon your foot. Root can never rhyme with suit. In muscles Okay, is let's stop here. Root can never rhyme with suit. So root and suit are not rhymed in the same way. चले मैम. Next, आगे. in muscle. In muscle, is s. In muscular, Yes. it's sk. Yes. Square must always rhyme with wire. That again will Very good. rhyme with liar. Then Very remember nice. its address with an accent like possesses. Yes. G, G in sign must silent be. In signature, pronounce the G. Please remember, Next. say words just as if it rhymed with birds. Weights like weight, but not like height, which should always rhyme with might. Sew is just the same as sew. Tie a ribbon in a bow. When you meet the queen, you bow, which again must rhyme with how. In perfect English, make a start. Learn this little rhyme with heart. Very nice. Thank you so very much. Here are when you meet a queen, you bow, which again must rhyme with how. So BOW is bow and bow in both, like a tie a ribbon in a bow, and that rhymes same as so. SEW and SO, they both are so. So when you meet the queen, you bow down your head. हम assembly में भी बोलते हैं. So अमूमन बहुत सारे स्कूल bow down your heads भी बोलते हैं, जो कि गलत है. Which again rhymes with how. Thank you very much for your active participation. We'll have other participations ahead inshallah in next slides. So let's talk about phonics and phonetics. Here is written phonics. I'll just be highlighted. Okay, phonics. This is basically dictionary representation, and it is from the IPA chart. Phonics is a noun, and it is a method of teaching people to read by correlating sounds with the symbols in an alphabetic writing system. So A till Z जो आप alphabets देखते हैं, they are basically symbols. And उनको हम sounds के साथ we relate them, and this method of teaching is called phonics. And phonetics क्या होता है? This is also a noun, and it is the study and classification of speech sound. Speech का मतलब होता है whatever you say. It's not about written, it's about speech only. Let's move to the next now. So phonics is a way of teaching children or maybe adults, those who are reading or trying to learn English as a second language, to read quickly and skillfully. Why phonics is taught to recognize the sounds that each individual letter makes. हर letter की अपनी एक sound होती है जो कि हर school में हम बचपन से भी सुनते आ रहे हैं. Though हमारे time पे we were not taught with the sounds, we were taught with the letters name only. So, and we teach phonics to identify the sound that different combination of letters make.
हम साउंड्स और लेटर्स को कंफ्यूज नहीं करेंगे. दिस फोनेटिक वर्कशॉप इज ऑल अबाउट साउंड्स. हम साउंड्स के ऊपर बात करेंगे. व्हेन आई से साउंड, सो इट डज नॉट मीन द नंबर ऑफ लेटर्स व्हिच आई एम रिप्रेजेंटिंग ऑन द स्क्रीन. Blending of sound together from left to right to make a word. हमेशा आपको पता है English we start from the left side and we continue towards right. So when we call out any of the word, so हम उसको blend करते हैं. और blending कहाँ से start होती है? From left to right. So children can use this knowledge to decode new words that they can hear or see. जब भी वो word देखेंगे उसको decode करेंगे. और अगर उनको फोनेटिक टेक्निक्स आ गई हैं, उनके एज अप्रोप्रिएट, उनकी क्लास अप्रोप्रिएट एंड मे बी उनकी स्किल रिक्वायरमेंट जितनी हो. सो दिस इज द वेरी फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन लर्निंग टू रीड. Here we have another slide. So, लैंग्वेज की डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. जब बच्चा पैदा होता है ही स्टार्ट्स लिसनिंग और वो उसी को देख के कुछ बोलने की कोशिश करता है. फिर हम उसको पढ़ाते हैं एंड द चाइल्ड देन स्टार्ट्स रीडिंग व्हेन ही मास्टर्स द राइटिंग व्हेन ही मास्टर्स द रीडिंग लेवल. और रीडिंग कहाँ से आएगी? जब वो बहुत बोलेगा. सो स्पीकिंग की जो एबिलिटी है वो लिसनिंग के बाद आती है. इसलिए अमूमन घरों में जो हम लैंग्वेज डेवलप करवाते हैं बच्चे के साथ, स्कूल में जाके वो बहुत रिफाइन हो जाती है. बच्चा बहुत डिफरेंट लैंग्वेजेस को और भी सीख लेता है. वाई? बिकॉज उसकी लिसनिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है. जब उसकी लिसनिंग कैपेसिटी बढ़ेगी वो समझेगा. द चाइल्ड विल स्टार्ट स्पीकिंग. और जब उसकी स्पीकिंग अच्छी होगी ही विल स्टार्ट रीडिंग. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप रीडिंग आता है. जब रीडिंग हो जाएगा एंड देन ऑफ कोर्स राइटिंग. Here is something children typically progress through several stages of language development. बहुत सारी language stages हैं, मैं आपको one by one बताऊंगी ये भी. और starting with pre-linguistic communication जिसमें बच्चा cooing और babbling करता है और eventually बच्चा उस ability में चला जाता है जहां पर वो complex sentences को बोल सके. सो ये जो स्टेजेस हैं जिसमें बैबलिंग, सिंगल वर्ड स्टेज, टू वर्ड स्टेज, टेलीग्राफिक स्टेज एंड मल्टी वर्ड स्टेज, मैं इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं. अच्छा, जो लैंग्वेज की डेवलपमेंट है ये बेसिकली प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस है. सो ईच स्टेज जो है वो लास्ट को रिफ्लेक्ट करता है आपकी ग्रोइंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोल ओवर योर स्पीच. आपकी स्पीच पे कैसा आपका कंट्रोल आएगा, उस बच्चे का कैसे आएगा जो बच्चा जिसकी ये माइलस्टोन्स हैं. और कुछ चीजें नेचर की तरफ से, अल्लाह की तरफ से बच्चे अचीव करते हैं. और जब नहीं होते तो फिर हम लोग कहते हैं कि जी बच्चा बोल नहीं रहा है, इसको स्पीच थेरेपिस्ट की जरूरत है या कोई और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है. एंड दैट इज अनदर थिंग. बट एक नॉर्मल बच्चा जो है उसकी फर्स्ट जो स्टेज होती है उसको हम कहते हैं प्री लिंग्विस्टिक स्टेज. एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम बर्थ टिल 12 मंथ्स, 1 ईयर तक. इसकी की बिहेवियर क्या होते हैं कि बच्चा क्राइंग करता है स्टार्ट फ्रॉम बर्थ. उसमें बेसिक दिस इज द बेसिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन जिसमें वो अपनी हंगर, डिस्कम्फर्ट, अपनी पेन सब कुछ उसी रोने में बताता है. सो द फर्स्ट प्री लिंग्विस्टिक स्टेज जो फ्रॉम बर्थ स्टार्ट होती है दैट इज क्राइंग. आपने देखा होगा जब बच्चा डिलीवर होता है सो डॉक्टर्स यूज्ड टू टैप ऑन देयर बैक ताकि बच्चा रोए. सो उसकी बेसिक जो फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है दैट स्टार्ट्स राइट आफ्टर द जो है वो कूइंग करता है. एक्सक्यूज मी. कूइंग उसकी स्टार्ट होती है फ्रॉम 6 to 8 weeks आफ्टर द बर्थ. और उसमें वाउल लाइक साउंड्स बुलाता है बच्चा. और ये भी एक नेचुरल अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है कि जब बच्चा बोलना शुरू करता है तो वाउल्स के साथ शुरू करता है. और हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे एडल्ट्स हैं दोज हु आर नॉट गुड एट वाउल्स. उनको पता नहीं है, वाउल्स नहीं बुलाते, हम इसको वाउल्स कहते हैं. और बच्चा जब पैदा होता है कूइंग की स्टेज पे आता है 6 to 8 weeks में तो वाउल लाइक साउंड्स बुलाता है जिसमें ऊ आ और ये सारी साउंड्स आती हैं. उसके बाद द चाइल्ड स्टार्ट्स बैबलिंग 4 to 6 months की एज में होता है जिसमें रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स आ जाते हैं. वो वाउल से शुरू करता है एंड देन कॉन्सोनेंट्स में आ जाते हैं जिसमें बाबा, मामा, दादा एक ही साउंड लगा के बच्चा उसको प्रोनाउंस करता है. वाउल और कॉन्सोनेंट्स का मिक्स दे देते हैं लेकिन रेपिटेशन होती है. आपने कभी नोट किया होगा बच्चा सिर्फ बा नहीं बुलाएगा, बाबा बुलाता है. सो रेपिटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट वाउल साउंड्स.
उसके बाद बच्चा टर्न टेकिंग पे आ जाता है. द चाइल्ड पॉजेज आफ्टर अ साउंड एंड वेट्स फॉर अ रिस्पॉन्स. अर्ली कॉन्वर्सेशन स्किल है ये. सपोज अगर एक 6 महीने का बच्चा है, वो जो म्यूजिक सुनता है या कुछ भी, आपने देखा होगा वो बैबल करता है रिदमिकली, रिदम के साथ करता है. और जब भी पेरेंट्स बच्चे को बुलाते हैं जैसे हाय बेबी, हेलो बेबी, ठीक है, तो वो आगे से रिस्पॉन्ड करता है. सो द चाइल्ड वेट्स. बहुत सारे लोग क्वेश्चन कहते हैं कि इज बैबलिंग द सेम इन ऑल लैंग्वेजेस. बहुत सारे घरों में लैंग्वेजेस डिफरेंट बोली जाती हैं. इंग्लिश इज आर नॉट प्राइमरी लैंग्वेज एट होम्स. कुछ लोग पश्तो स्पीकिंग है, पंजाबी है, उर्दू है, सिंधी है. सो द क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी ये, किससे पूछूं? मुझे लेट मी सी. आई कैन सी ऑन द स्क्रीन. मरियम बतूल, मरियम बलोच, सॉरी, मरियम बलोच. Mariam Baloch, can you unmute your mic, please? Okay, Mariam is not around. Miss Nurul Huda. Yes, ma'am. Okay, Nurul Huda, there is a question for you that is babbling the same in all languages? In babbling, I would say that the child, whatever the child is listening, so the child is trying to babble whatever the child is listening. If the Urdu speaking family, the child is trying to say the word that whatever the child is listening. The same goes for other languages. That's what my understanding is. Yes, early babbling is universal, but it gradually becomes shaped by the sounds the baby hears most. Thank you very much, Miss Nurul Huda. You're welcome. Okay, what if a baby does not babble at all by 9 months? Anyone else? कोई और इसका जवाब देना चाहेगा? What if a baby does not babble at all by 9 months? रुकैया है कोई हमारे पास? Ma'am, it could be possible that delay in the development process. Okay, and what if it happens? Development is delay and the speech and recognition is picking power is delay and children start Yes. babbling after 9 months. So what if a baby does not babble at all by 9 months? It's a sign to watch. So you need to consult a pediatrician or speech therapist to rule out hearing issue है कि developmental delays है. Because speech का ताल्लुक hearing से बहुत ज़्यादा होता है. So बहुत सारे बच्चों की speech therapy शुरू करवा देते हैं, उससे पहले hearing issues की तरफ लोग नहीं जाते हैं. Fine. So उसके बाद सिंगल वर्ड फेज आती है जो कि 12 to 18 मंथ्स की होती है. उसमें की बिहेवियर क्या होता है बच्चों का? वन वर्ड. उनका वन वर्ड जो होता है वो समझे होल सेंटेंस होता है हमारे लिए, जिसको होलो फ्रेज भी बुलाते हैं, और वो अपना मीनिंग कन्वे कर देते हैं. और वो स्लोली स्लोली उनकी वोकैबुलरी ग्रो होती है, लेकिन मोस्टली नाउन्स के साथ करते हैं. जैसे बच्चा है, उसने आपके सामने जूस देख लिया और वो जूस बुलाएगा, तो उसके लिए पूरा सेंटेंस है. वो आपको क्या कन्वे करना चाह रहा है? आई वॉन्ट सम जूस. इसी तरह उसने डॉग देख लिया तो वो बोलेगा डॉगी डॉगी. सो वो अपना मीनिंग क्या कन्वे करना चाह रहा है? देयर इज अ डॉग आउटसाइड, और आई एम स्केर्ड ऑफ द डॉग में भी. और उसके बाद हमारे पास अगली स्टेज आती है टू वर्ड स्टेज, जो कि 18 मंथ्स टिल 24 मंथ्स तक होती है. और उसका की बिहेवियर होता है द चाइल्ड कंबाइंस टू वर्ड्स टू फॉर्म अ मिनी सेंटेंस. वर्ड ऑर्डर्स बिगिंस टू रिफ्लेक्ट मीनिंग. वर्ड ऑर्डरिंग जो है वो मीनिंग को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन बच्चे अमूमन जो है जिस पे एम्फेसिस करना होता है वो वर्ड पहले लगा देते हैं और टू वर्ड्स के साथ एक सेंटेंस कन्वे करते हैं. सो वोकैबुलरी ग्रोज रैपिडली. इसको लैंग्वेज एक्सप्लोजन एज भी बोलते हैं, जिसमें 18 to 24 मंथ होती है. इसमें बच्चा बुलाएगा मामा कम, सो इट मीन्स के अ चाइल्ड वांट्स टू से कम हियर मामा. ठीक है. इसी तरह नहीं सोना, इट मीन्स कि मुझे आई डोंट वांट टू स्लीप. उर्दू में थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा. इफ द चाइल्ड सेज नो स्लीप, नो नो बुलाएगा, तो आप समझ जाओगे कि अ चाइल्ड वांट्स टू से दैट आई डोंट वांट टू स्लीप. उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेज आती है टेलीग्राफिक स्टेज, जो कि 2 to 3 years की होती है. इसका की बिहेवियर क्या होता है कि बच्चों की जो स्पीच होती है इट्स लाइक अ टेलीग्राम,
और जस्ट की कॉन्टेक्स्ट वर्ड्स लगाते हैं। इसमें आर्टिकल्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स, प्रेपोजिशंस मिस कर देते हैं बच्चे, और ये सेंटेंसेस 3 to 4 वर्ड्स लॉन्ग होते हैं। सपोज हम बुलाते हैं बाबा गो वर्क, मी प्ले, वांट मोर कुकीज। फाइन, तो इसका मतलब ये होता है कि बाबा हैज गॉन टू द वर्क एंड आई वांट टू प्ले एंड आई वांट सम मोर कुकीज। तो वो पूरा पूरा सेंटेंस आपको कन्वे कर देंगे। इसको टेलीग्राफिक स्टेज क्यों बोलते हैं? बिकॉज पुराने जमाने में जब टेलीग्राम्स होते थे तो उसमें की वर्ड सिर्फ यूज किए जाते थे टू सेव द एफर्ट। जैसे ऊपर लिख देते सेंड मनी सून, सेंड मनी ऑन दिस डेट। सो इसलिए टेलीग्राफिक होती है ये स्टेज। यहाँ तक अगर मल्टी, ओके, द लास्ट इज मल्टी वर्ड स्टेज। ये 3 इयर्स और उससे आगे की एज में होता है। की बिहेवियर्स क्या होते हैं इसके? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बच्चा ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो करता है, उसमें प्रोनाउंस को भी यूज करता है, टेंसेस की भी उसको समझ में आ जाती है कि मैंने प्रेजेंट में बोलना है, or shall I use past tense? If a child wants to convey something that he wanted to do, तो वो future में बोलेगा। Questions को कैसे form करना है, conversation become more back and forth। इसमें बच्चा बोलेगा I went to the zoo and saw lions, पूरा sentence। हम पार्क में गए थे, वहां पर हमने बहुत सारे झूले लिए। सो 3 इयर्स और उससे ऊपर का जो बच्चा है वो ये सारे सेंटेंसेस बोल लेता है। एक छोटी सी वीडियो है, मैं आपको दिखाती हूँ, जिसमें कोइंग और बैबलिंग से रिलेटेड है ये। जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी स्टार्ट हो जाती है बच्चे की। You do it. Oh. 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 You might not know this. Oh. This is not the kind of song that you can sing along to. Maybe someday. Oh. At least that's what all the good people say. Look what you done. So this is basically कोइंग। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज सीक्वेंस के ऊपर। यहाँ पर अब मुझे कोई पार्टिसिपेंट चाहिए। वॉलंटियर कौन करेगा? मार्च वाले आ जाए। March born people, raise your hands. Sarah Fez. Please unmute your mic, ma'am. Assalamualaikum, ma'am. How are you? I'm good. How are you, ma'am? Alhamdulillah, I'm fine. Yes, ma'am. Okay, ma'am. They had. I'm sure that you can see on your screen English language sequence: letter, word, sentence, and text. Fine. You will have to give me one example for a letter, and then you'll have to make a word from that letter. Then you have to use that word in a sentence, and then we'll go towards text. यहाँ पर थोड़ा सा I would clear you. Letter is the individual letter, fine, and word is a single word, and that letter should include in that word. Maybe it starts with or in the middle or wherever. Sentence is a group of words, but this word, whatever you select, should be included in that and should be end with a pause. And text is the combination of sentences. It could be a paragraph, it could be an essay or whatever. Fine. So we'll start with that. Which word would you like to give me? Okay, I'll start with the letter A. That is A. A. And the word is, yes, and the word is cat. Okay. And the sentence is, this is my cat. Okay. And the text is, this is my cat and it sleeps with me every night. I give her a lot of food and I cannot live without her. Thank you very much. So this is basically the sequence of English language. First, we start with letter. Here I took the letter D, and the sound of D is D. So the word which starts with D is dolphin. And the sentence which I'm using here, dolphins use sounds and whistles to communicate with each other. And next we have a text. Can anyone read this text for me? Anyone who can volunteer, unmute the mic and do it. Yes, ma'am. Please, may I know your name?
Ahmad Ali. Ahmed Ali, please carry on with the text. Dolphins are smart animals that live in the ocean. They cannot talk. They cannot talk like human, but they have their own special way of talking. Dolphins use sounds, whistles, and clicks to communicate. These sounds help them stay in touch with their friends, find food, and stay safe from danger. Each dolphin has a unique whistle, almost like a name, so other dolphins know who is calling. Scientists study these sounds to learn more about dolphin behavior and how they live in the sea. Thank you very much. So this is basically the English language sequence. We'll go to the next slides, and that is about phonetic method versus non-phonetic method. जो नॉन फोनेटिक मेथड है हम अपने बचपन से जो हमें पढ़ाया गया दैट वाज नॉन फोनेटिक मेथड एंड देयर इज अनदर मेथड दैट इज कॉल्ड फोनेटिक मेथड. Suppose there is a letter on the screen and the letter is B. In non-phonetic method, how we start or how people start with the name of the letter. हम पढ़ाते हैं बच्चों को ना ये letter B है बोले B for ball, that is wrong. And this is basically non-phonetic method. इसके through you cannot work on the child's speech, you cannot work on the child's reading, you cannot work on the child's pronunciation. सो नेम के बाद हम उसकी शेप पढ़ाते थे और हम कहते थे जी इससे बी फॉर बॉल है. सो फोनेटिक मेथड में वी स्टार्ट विद द साउंड एंड देन वी टेल द लेटर नेम, शेप ऑफ द लेटर कि कैसे बनानी है आपने. यू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन and then you make a half tummy on the right side, so this will become letter B, and then you say the name. So this is basically phonetic method, and this is the correct method if you want to work on your pronunciation, on your readings. So you need to get in this way with your children as well. Those who are teachers, they can share this method with their students as well, and you will see the results. So here we can see the sounds now on the screen. There are approximately 44 sounds और उसके साथ slash में phonemes भी लिखा हुआ है in English language, and these are represented by 26 graphemes. Grapheme का word graph का मतलब होता है graphic, जो कि आपको नजर आ रहा है इमेज के थ्रू, और 26 लेटर्स हमारे लिए ग्राफ्स हैं. ठीक हो गया. 44 जो साउंड्स हैं उनको हम बुलाते हैं साउंड्स, लेकिन वो रिप्रेजेंट होते हैं डिफरेंट ग्राफीम्स के थ्रू. जैसे अगर मैं आपसे सपोज एसएच की साउंड होती है, बट ये एक साउंड है, इज वन साउंड, लेकिन इसके अंदर कितने लेटर्स हैं? S and H, there are 2 letters. Fine. It is very important to say the sounds correctly, both for reading and for spellings. And these are called pure sounds. So let's practice saying the pure sounds together. मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाली हूँ अभी. थोड़ा सा उस वीडियो को गौर से देख के आप लोगों ने अपनी माउथ मूवमेंट भी वैसे ही लेके चलनी है. इसके बाद हम लोग साउंड्स की प्रोनाउंसिएशन को सीखेंगे कि आपने अपने लिप्स को कितना बंद करना है, आपकी टंग जॉ के कहाँ टच करेगी पैलेट के ऊपर, एयर कैसे पास करनी है और साउंड कैसे प्रोड्यूस करनी है. बिकॉज जब हम साउंड्स करेक्टली प्रोड्यूस करेंगे तो हमारी रीडिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगा. सो आई एम जस्ट गोना शेयर विद यू वीडियो. And here is snake, ant, tennis, ink, जी मोमिना. puff, Ma'am, Yes.
Speak out. Who is there? ये देख लो. Okay, I'm resuming the Cat. Egg. Hop. Rag. Meal. Drum. Gurgle. Hello. On. Umbrella. Lollipop. Fish. Bat. A. Okay, these are the long vowel sounds. इनको मैं अभी आपको practice करके. So I'm backing on my screen back now. ये कुछ sounds सी जो मैंने आपको दिखाई, you can find them on YouTube easily. आपको आराम से वहाँ मिल जाएंगी. Pure sounds हैं, you practice them. So next we are moving towards stretchy consonant sounds. Stretchy consonants कौन से होते हैं? जिसमें letter F, L, M, N, R, S, V, Z, sh, अब इन sounds को आपने practice करनी है. मेरे पास हम March Bond पे थे. March Bond, you unmute your mic, all of you. Okay, now you need to practice this sound. Practice the stretchy each sound and avoid saying f, l, m नहीं बुलाना. It is the closed sounds. Okay, all of you, let's start with once. Let's see my laser pointer on this sound. Ma'am. Yes, who is there? Ma'am. जी कौन है बताइए. मैम मैं क्या क्या मोहित मोहसिन हूँ. ओके. मैम मैंने आपसे पूछना था मैम, ये जो आपने ग्राफीम्स बोले हैं ये होते क्या हैं? जी मैं भी आपको आगे करवाऊंगी. ग्राफीम्स की हम आगे प्रैक्टिस करने वाले हैं. फाइन, दैट वाज द इंट्रोडक्शन ओनली. ओके मैम. ओके चलिए. March Bond, Okay, unmute your mics and let's start from here. Start. Very good. Next. Next. Very nice. Very nice. Next. Very nice. This is the tricky one. It's very nice. Next. Very good. अच्छा, अब इन्हीं साउंड्स को हम बोलेंगे शॉर्टेस्ट वे में. इसको हमने लिंगर नहीं करना है. ओके स्टार्ट. नॉट फ. आवाज हवा नहीं बाहर आएगी. मुंह नहीं ओपन करना. Very good. Next. And the last. Thank you very much. Okay, let's move to the next slide now.
Can I take a pause for a minute because azan हो रही है यहाँ पर. Okay, Right, ma'am. ma'am. Thumbs up. Thank you. चलिए जी, वेलकम बैक. हम नेक्स्ट स्लाइड पे आगे हैं और मुझे यहाँ पर कोई ऐसा पार्टिसिपेंट चाहिए जिनको बहुत अरसा हो गया हो इंग्लिश की साउंड्स पढ़ाते हुए, अल्फाबेट्स की साउंड्स पढ़ाते हुए. प्लीज अनम्यूट द माइक. कौन है? आप लोग, ऑल ऑफ यू प्लीज लोअर योर हैंड्स. तो जब कुछ पूछना होगा देन यू कैन रेज योर हैंड सो दैट आई वुड बी क्लियर कि किसने हाथ खड़ा किया, बिकॉज काफी सारे पार्टिसिपेंट्स की ऑलरेडी बहुत टाइम से देयर हैंड्स आर रेज्ड. तो मैं खुद ही किसी को बुला लूं? Yes, ma'am. ओके, हु इज देयर? ओके, अरूज. अरूज, प्लीज अनम्यूट योर माइक. अरूज फयाज. Okay, Aruj is not available. Nida Rajput. Yes, ma'am. Okay, Aruj is here. Aruj, आपको स्क्रीन पे स्लाइड नजर आ रही है? Yes. ये थोड़े बाउंसी साउंड्स हैं, ठीक है? And these are also called bouncy sound, but it is harder not to say so you need to do your best practice. ठीक है, इसमें आपकी हवा नहीं बहुत बाहर आनी चाहिए. फाइन. आप 4 दफा मैंने एक लेटर लिखा हुआ है, आपने 4 टाइम्स ये साउंड बुलानी है. डू इट. थोड़ा ऊंचा प्लीज. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही. मेरी आवाज नहीं आ रही? किस किस को नहीं आ रही? मैम आपकी आवाज क्लियर है. क्लियर है? चलिए जी, यस. जो बोले हैं आरिफ मुनीर साहब, आप ही अनम्यूट करें अपने माइक. हो गया?
Nazia Amir, she raised her hand. Nazia, please unmute your mic. Nazia Amir. मैम वेट अ मिनट, मेरे यहाँ पर अजान हो रही है, थोड़ी देर ठहर जाऊँ मैं। अच्छा चले कोई नहीं, I'll ask somebody else. Musfira. थैंक यू। Musfira. चले मैं खुद ही कर लेती हूँ, leave it. Sorry, Musfira is here. Hello, ma'am. Nisa Waziri ji. Sorry. Nisa, N-I-S-A, Nisa Waziri. Okay, fine. चले निशा। Ma'am, निशा though I ये have not साउंड्स हैं affected हमारे the पास। जी जी, स्टार्ट। M, M, B, B, D, 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 अच्छा D. निशा, आपने एक काम करना है, अगर आपके सामने कोई पेपर है ना, उसको थोड़ा अपने लिप्स के आगे रखें Okay, और ma'am, आपने yes, sir. देखना है कि वो कम से कम हिलना चाहिए। फाइन। Okay, ma'am, I have M, G, चलें स्टार्ट करें। वेरी गुड। B, 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 D, 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 G, 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 J, 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 Y, 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 Y. थैंक यू वेरी मच। इनकी शॉर्टेस्ट है ब ड ग ज व य। सो इसकी सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होती है, आप अपने हाथ के आगे, मुंह के आगे, लिप्स के आगे एक पेपर पकड़ ले एंड देन सी कि वो पेपर कितना वेव करता है। जितना ज्यादा हिलेगा इट मींस आपकी साउंड्स बहुत क्लियर नहीं आप प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। सो प्रोनाउंसिएशन ऑफ साउंड्स, बहुत केयरफुल प्रोनाउंसिएशन ऑफ साउंड्स बहुत जरूरी है, बिकॉज आप बेसिकली दूसरों के लिए एक गुड लैंग्वेज मॉडल होते हैं। सो साउंड शुड बी प्रोनाउंस्ड सॉफ्टली and in a clipped manner, short manner. फाइन। हम साउंड्स को कुछ प्रैक्टिस करने जा रहे हैं अभी। आप लोगों ने मेरे साथ साथ रहना है और जैसे मैं बताऊंगी आप लोगों ने अपनी माउथ मूवमेंट वैसे रखनी है। हम किसी एक पार्टिसिपेंट का माइक अनम्यूट करवाएंगे ताकि बहुत ज्यादा सबकी वॉइस मिक्स ना हो। और वो कौन आना चाहेगा जिसने प्रैक्टिस करनी है? हाथ खड़ा करेंगे तो मुझे जरा आइडिया हो जाएगा कि कौन आना चाह रहा है। जोहरा। यस ओके जोहरा, यस अपना मैम। थोड़ा चलें हम आपके साथ ही प्रैक्टिस करते हैं। फाइन। यस मैम। जोहरा, सबसे पहली साउंड आप स्क्रीन पे देख रही हैं, आपको क्या नजर आ रही है? एस मैम। सॉरी, सॉरी एक मिनट। म्यूजिक बज रहा है। चलें जोहरा, आप मेरे साथ हैं? यस मैम। ओके, बाकी सब लोग भी प्लीज इसी को फॉलो करना है। जोहरा, पहला लेटर आप मुझे बताएंगे क्या लिखा हुआ है? मैम एस। एस है। फाइन। एंड इसकी Yes, ma'am. साउंड क्या होती है? मैम फाइन। इसको आपने प्रोड्यूस कैसे करना है? आप सब लोगों ने अपनी टंग को क्लोज करना Yes, है ma'am. रिज के साथ। रिज आपका बेसिकली जो आपका पैलेट है ना, जिसको हम तालू भी बुलाते हैं, बिल्कुल ma'am. दांतों से पीछे वाली जो जगह होती है ये हमारा रिज होता है। फाइन। सो आपने अपनी Yes. टंग को क्लोज करके रिज के बिहाइंड द टॉप ऑफ योर टीथ जो जगह होती है वहां तक लेके आना है और एयर को हिस आउट करना है, हिस करना है जैसे स्नेक करता है। फाइन। से इट ऑल ऑफ यू, आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे प्लीज। आप अपनी टंग को रिज के पास लेके जाएंगे जस्ट बिहाइंड योर टीथ एंड हिस करेंगे एयर को। वेरी गुड। तो लेटर की हमारे पास वर्ड क्या आ रहा है? मैम टी। सेट That. सॉरी। सेट। That.
अच्छा, इसमें जो साउंड हम अभी जो लेटर्स की साउंड्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपने प्लीज मेक श्योर करना है कि उनकी आवाज पे बहुत आपने एक एम्फेसिस देना है, जैसे सैट, सैट। फाइन, नेक्स्ट लेटर क्या है? टी। एंड व्हाट इज द साउंड ऑफ दिस लेटर? ओके, ये ट भी नहीं है, ये ठ भी नहीं है। इसको आपने बोलना कैसे है? आपकी जो टंग है वो आपके जो रिज है राइट बिहाइंड योर टीथ, ऊपर वाला, ठीक है, रिज कहते हैं ऊपर वाले तालू को, पैलेट को हम बुलाते हैं। इसकी दांतों से बिल्कुल पीछे वाली जो जगह होती है ये रिज होती है। आपने यहाँ पर अपनी टंग को टैप करना है, ठीक है, और एकदम से क्विकली रिलीज करना है। बहुत ड की आवाज नहीं आएगी, क्विकली रिलीज करना है। यू नीड टू टंग टैप योर टंग टू द रिज बिहाइंड द टॉप टीथ एंड रिलीज क्विकली। ओके, द वर्ड इज Tap. tap. Okay, Tap. the next letter. P. P, and what is the sound of this letter? P. Okay, इसमें आपने क्या करना है? You need to press your lips together. ठीक है, प्रेस करना है अपने लिप्स को और इसको बर्स्टली ओपन करके एयर बाहर निकालनी है, लेकिन वॉइस लेस, नो वॉइस के साथ, ठीक है। इसमें फ की आवाज नहीं आएगी, आवाज नहीं आनी चाहिए, इसमें सिर्फ बर्स्ट ओपन होगा आपका विद एयर। लिप्स को प्रेस योर लिप्स टुगेदर और इसको बर्स्टली ओपन करें विद एयर। आप हाथ आगे रखेंगे ना अपने मुंह के तो आपको हवा आएगी, लेकिन जब आवाज आएगी तो भी आपको फील होगा, तो वॉइस नहीं होनी चाहिए। कैन यू प्रैक्टिस दिस? ओके, एंड व्हाट इज द वर्ड? Fan. Fan. Okay, the next is And the okay, and the sound is इसको टंग को आपने टच करवाना है रिज के साथ। Yes, ma'am. ठीक है, रिच मैंने आपको बताया है, ऊपर ma'am. पैलेट को बोलते हैं आपके। एंड एयर गोज थ्रू नोज, आपने एयर जो है वो मुंह से नहीं रिलीज करनी है, नाक से रिलीज होगी। नो कॉल आउट। टंग को टच करवाए रिच के साथ एंड एयर गोज थ्रू नोज। आपकी जो एयर है मुंह की, वो आपकी जो टंग है उसने रोक दी है, अब वो नाक से आप निकालेंगे। डू इट। नो नहीं, आपने न नहीं बुलाना। देखिए, आपने वापस अपने जो एयर है ना, जो ब्लॉकेज आपने मुंह में की है वो आपने ओपन नहीं करनी है, ब्लॉकेज वहीं रहेगी। आपकी टंग आपके पैलेट के साथ रहेगी, आपने वहां पर एयर को ब्लॉक किया और आपकी एयर निकलेगी नाक के थ्रू, तो ऑटोमेटिकली वाइब्रेट करके नाक से आवाज निकलेगी। डू इट। वेरी गुड। एंड व्हाट इज द वर्ड? Nose. नोज। थैंक यू। कोई और आना चाहेगा प्लीज? Yes. किसी और ने प्रैक्टिस के लिए आना है? अनम्यूट द माइक एंड प्लीज। Yes. Yes, Okay, ma'am. who is there? Who is there? I'm Sana. Sana. Okay, Sana. Let's talk about this letter M. And what is the sound of this letter? Okay, इसमें इसको हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं, साउंड आउट कैसे करते हैं? You need to close your lips. ठीक है, एयर को आपने फ्लो कराना है थ्रू नोज। हमने एन में क्या किया था? हमने टंग को टच करवाया था रिज के साथ, हमने मुंह से एयर ब्लॉक की थी, लेकिन हमने मुंह बंद नहीं किया था, लेकिन हमने अब नाक के थ्रू हमने एयर पास की थी। यहाँ पर आपने लिप्स को क्लोज करना है और आपकी आवाज भी यहीं से नहीं आएगी, आपकी आवाज भी जाएगी आपकी वाइब्रेट करके, और एयर आपने फ्लो करनी है नोज के थ्रू। Close your lips, lips closed. Air flow through the nose. Yeah. आपने देखा होगा जब आप बुलाते हैं तो आपके लिप्स और ज्यादा स्क्वीज हो जाते हैं, हवा बंद कर देते हैं, ऐसे ही है? Yes. Okay. Okay. Yes, What ma'am. is the word? What is the word? Mat. Match. Okay. The next letter. Match. Match. अगला लेटर हमारे पास क्या है? ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ओके, फाइन। अच्छा, ए जो है ना, ए लेटर, इसकी बहुत सारी साउंड्स हैं जो हम पढ़ेंगे अभी आगे।
अ भी ठीक है, ए भी ठीक है, आ भी ठीक है, लेकिन इट डिपेंड्स कि आपका यूजेज कहाँ है और किस वर्ड के अंदर आ रहा है. सो बेसिकली जो लेटर ए है इट्स अ वाउल साउंड, ठीक है, और ये ट्रिकी साउंड्स होती हैं. इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे वर्ड्स में कि वो किस कॉम्बिनेशन के साथ आ रहा है. सीबीसी का रूल तो सबको पता होगा कि एक जो सबसे शॉर्टेस्ट वर्ड जो हम बनाते हैं वो कॉन्सोनेंट, वाउल और कॉन्सोनेंट को मिलाकर बनाते हैं 3 लेटर वर्ड्स. तो इन्हीं रूल्स के साथ हम आगे चलेंगे और हम पे डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वाउल करेंगे. ठीक है, अभी सिंपल ए की साउंड है दैट इज ए. उसको अपने माउथ को वाइडली ओपन करें, मुंह को अपने, ठीक है, और टंग को लो करें, और जो आपकी टंग को लो करके फ्रंट पे लेके आए और फिर देखें ए. आपकी जो मिडिल टंग है वो थोड़ी सी ऊपर जाएगी और जो आपकी जो टंग का ब्लेड है आगे, जो आगे फ्रंट एरिया ब्लेड होता है जो जुबान का, वो थोड़ा लो जाता है. डू इट. ए ए. Call out, say it. Okay. And what is the word? Ant. Okay. The next letter is E. ये भी वाउल है. इसमें आपने क्या करना है, मिड फ्रंट जो है उस टंग को आपने ओपन रखना है. स्लाइटली ओपन द माउथ. आपकी जो टंग है इसका मिड फ्रंट जो है उसको थोड़ा ओपन रखना है, मतलब आपने पूरा रिच के साथ नहीं लगाना है, जैसे बोल्ड करके आपने बनाना है. ठीक है, आपका जो मिड फ्रंट की टंग है उसको स्लाइटली ओपन विद द माउथ. मिड फ्रंट, जो आपका जो फ्रंट है इसके मिडिल वाली जगह से आपका स्लाइटली माउथ ओपन होगा और आप ये साउंड निकालेंगे. बोलें ए ए. हो गया. आपने देखा होगा आपकी जो मिड टंग है उसमें से साउंड प्रोड्यूस होके आती है. जुबान तो बहुत लंबी होती है नीचे भी, बट जो अभी आप अपने मुंह में आइडेंटिफाई करवा रहे हैं उसको हम फ्रंट, मिड और बैक के साथ करेंगे. ठीक हो गया. नेक्स्ट साउंड से क्या हुआ, एग. द नेक्स्ट इज लेटर आई. वो फिर हमारे पास वाउल साउंड है. इसकी साउंड होती है ई. और इसमें आपने टंग को हाई और फ्रंट पे लेके आना है और लिप्स को स्प्रेड करना है आपने. टंग को हाई करें फ्रंट पे और लिप्स को स्प्रेड करें. बोले ई ई ई. आप अपना गौर से अपने टंग को आप थोड़ा सा ध्यान दें. आपकी टंग देखिएगा आपके ऊपर जो एबुला है उसके साथ टच भी करती है, बिल्कुल बैक से. बोले ई ई. फील हो रहा है? Okay, fine. Ink. Next is letter O, and the sound of letter O is O, as in otter. Fine. इसमें माउथ आपने ओपन रखना है और टंग को स्लाइटली बैक करना है आपने. बोले ओ ओ. इसमें आप जुबान देखें आपकी स्लाइटली आप बैक करते हैं और आप माउथ आपका ओपन रहता है. साउंड बुलाएं. ओ ओ. वेरी गुड. ओ एज इन ऑटर. चलिए, थैंक यू वेरी मच. अब कौन आएगा? हम 2 लाइंस 2 रोज करेंगे, उसके बाद फिर मैं आई विल एक्सप्लेन यू और सारे प्रैक्टिस करेंगे उसको माइक ऑफ करके. अनम्यूट कर लिए. कौन है, नाम बताएंगे प्लीज. मैम ये साउंड ऑफ जी है. सॉरी मैम ये सॉफ्ट साउंड ऑफ जी है. ये बेसिक साउंड ऑफ जी है. ठीक है, इसमें सॉफ्ट और हार्ड साउंड्स जो है ना वो हम करेंगे आगे. ये बेसिक हमारी जो साउंड्स हैं, जो हमारी 44 अंग्रेजी की साउंड्स होती है ना, उसको बेसिकली प्रोनाउंस कैसे करना है. इनकी सॉफ्ट और हार्डनेस डिपेंड करती है वर्ड के ऊपर, कि उस वर्ड में इससे पहले या इसके बाद में कॉन्सोनेंट आ रहा है या वाउल आ रहा है, या 2 वाउल्स इकट्ठे आ रहे हैं, या 2 कॉन्सोनेंट्स के बीच में आ रहा है, या 2 वाउल्स के बीच में आ रहा है. ठीक है, तो ये बेसिक प्योर साउंड्स हैं जिसको हम प्योर बुलाते हैं. अब जैसे आपने एक वर्ड लिखा है बाबा. ठीक है, अब बाबा इज BABA, लेकिन ए की साउंड हमने यहाँ पढ़ी ए, तो बै तो नहीं होता, वो बाबा होता है. फाइन. सो वो बाबा क्यों होता है, दैट इज अनदर रूल जो हम आगे जाके पढ़ेंगे. अभी हम सिर्फ अपनी प्योर साउंड्स को क्लियर कर रहे हैं. फाइन. चलें, अब मुझे बताएंगी जी की साउंड क्या है.
G. ग। फाइन, इसमें आपने क्या करना है, आपकी जो बैक ऑफ द टंग है वो आपकी टच करती है सॉफ्ट पैलेट को। आपका जो ऊपर तालू है दांतों के पास ये हार्ड होता है, रिज बुलाते हैं, उसके पीछे सॉफ्ट हो जाता है, नरम हो जाता है, ठीक है। आपकी जो बैक ऑफ द टंग है वो आपकी टच करती है सॉफ्ट पैलेट को और फिर आप रिलीज करते हैं उसे, बुलाएं ग। आप एकदम G. से रिलीज करते हैं, वहीं से एयर रिलीज होती है और आवाज बाहर आ जाती है, G. ऐसे ही है ग। ओके, Good. ग एज इन गुड, वेरी गुड। द Good. नेक्स्ट लेटर इज डी और इसकी साउंड आपने कैसे बुलानी है, थोड़ा सा अपनी माउथ G. मूवमेंट, थोड़ा सा मुंह में दर्द भी होगा आपके, बिकॉज हम बहुत G. प्रैक्टिस में नहीं होते इन साउंड्स की, लेकिन हमने एग्जैक्टली इनको बुलाना है, प्रोनाउंस करना है एग्जैक्टली द वे दे आर। सो लेटर डी की साउंड होती है ड, और उसको आपने टंग को आपने टच करना है रिज के साथ बिहाइंड द टॉप टीथ और उसमें से वॉइस्ड आवाज निकलेगी, ठीक है। आपकी आवाज में जो भी आप एयर रिलीज करेंगे वो वॉइस्ड होनी चाहिए, जैसे ड ड। G. आप थोड़ा सा कर्ल करते हैं अपनी टंग को, G. ऐसे ही है। G. ओके, द नेक्स्ट इज लेटर सी एंड के, both have the same sound. इसमें your back of the tongue touches soft palate. आपकी back of the tongue जो है वो आपके soft palate को touch करती है और उसमें without voice आपने रिलीज करना है, जैसे ड के अंदर हमारी साउंड आ रही थी, के अंदर क नहीं बुलाना, ख नहीं बुलाना, इसमें आवाज नहीं आनी चाहिए, एयर रिलीज होनी चाहिए। प्रैक्टिस इट। जैसे ड के अंदर साउंड थी, वॉइस थी, इसके अंदर वॉइसलेस होगा ये, एयर आपने रिलीज करनी है। योर बैक ऑफ द टंग टचेस द सॉफ्ट पैलेट एंड देन यू रिलीज विदाउट वॉइस, एज इन क्लिक। ओके, आर साउंड, टंग को अपनी कर्ल करें, थोड़ा मोड़े नियर द रूफ ऑफ द माउथ विदाउट टचिंग, टच भी नहीं करना हमने इसके अंदर, ठीक है। आर की साउंड बुलाने के लिए र नहीं करते, हमने छोड़ना नहीं है वहां पर, ठीक है। आपने वापस रिलीज नहीं करना उस पोजीशन को, आपने अपनी टंग को कर्ल कर रखना है नियर द रूफ ऑफ योर माउथ विदाउट टचिंग, टच भी नहीं करना है, और वहीं पर एज इन रन। ओके, द नेक्स्ट बहुत ट्रिकी साउंड है, बहुत सारे लोग हा बुलाते हैं ऐसे, एंड दैट इज ऑल वेरी रॉन्ग। एच की साउंड, इसमें आपने एयर को फ्लो कराना है सॉफ्टली, बहुत सॉफ्ट एयर बाहर आती है फ्रॉम योर ओपन थ्रोट, आपके गले में से, लेकिन गले से खोल के आवाज निकालनी है अपने, सॉरी हवा निकालनी है। सो आपकी एयर जो है वो बहुत सॉफ्टली भी फ्लो करे। आपने एक चीज नोट की होगी, जो भी हम थ्रोट से निकालते हैं वो बहुत प्रेशर से बाहर आता है, ठीक है, लेकिन इसमें आपकी थ्रोट से आएगा प्रेशर, लेकिन आपने इसको रिलीज करना है बहुत सॉफ्टली। आप पेपर साथ रखेंगे ना, पेपर बहुत आराम से वेव करेगा, इट मींस यू आर प्रोड्यूसिंग द साउंड करेक्टली, लेकिन पेपर को एकदम से झटका लग के वो वेव करेगा, इट मींस इट इज इनकरेक्ट वे। नॉट हा, आवाज नहीं होनी चाहिए, इट्स वेरी गुड। थ्रोट से आपने बिल्कुल ठीक निकाला है, लेकिन एयर का फ्लो सॉफ्ट कर दे, और एयर भी आपकी बहुत प्रेशर से बाहर आ रही है मुंह से। वेरी गुड। नेक्स्ट इज यू, इसमें आपने जो आपकी सेंट्रल टंग है, सेंट्रल टंग से हम आवाज निकालते हैं यू की, और रिलैक्स्ड माउथ के साथ अपना मुंह बहुत रिलैक्स कर दें। इसमें आप बोले आ आ आ, अलिफ मदा होता है ना, जैसे अ अम्ब्रेला। चलिए जी, ये 3 साउंड्स किसी और के साथ करते हैं, उसके बाद मैं आपको सारी खुद प्रैक्टिस कराऊंगी। एनीवन एल्स वॉलंटियर? यस मैम। हु इज देयर? वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं? जरफिशा? नरगिस बात। नरगिस। ओके नरगिस,
दिस इज अनदर कॉम्बिनेशन, ये 2 लेटर्स के कॉम्बिनेशन है ए और आई का, लेकिन इसकी एक साउंड होती है, ठीक है। जो 44 साउंड्स हम पढ़ते हैं इंग्लिश में, इसमें ए आई इज 1 साउंड एंड इट्स 1 ग्राफीम। जब भी आपसे कोई रेन के सपोज एक स्पेलिंग लिखे होते हैं और आपसे कोई कहता है कि इसमें कितने लेटर्स हैं, तो आप क्या जवाब देंगी? रेन की स्पेलिंग, बारिश जो बुलाते हैं हम, कितने लेटर्स होते हैं उसमें? 4 लेटर 4 4 लेटर्स होते लेटर्स, हैं। फाइन। लेकिन जब हम ग्राफीम्स की बात करते हैं, आपको कितनी साउंड्स नजर आ रही हैं? 2 कितनी साउंड्स नजर आ रही हैं? ए आई ए ई। अच्छा चले, हम इसको स्प्लिट करते हैं। आपने मुझे बताया 4 लेटर्स, ठीक है। आर की साउंड इज र, ए की साउंड इज ए, एंड आई की साउंड इज ई, एंड एन की साउंड इज न। तो हम इसको क्या रे इन बुलाते हैं? हम इसको रेन पढ़ते हैं। 3 साउंड्स, इसका मतलब है 3 ग्राफीम्स हैं जो हमें नजर आ रही हैं, फाइन। ए आई इज 1 साउंड। अच्छा, फोनीम्स क्या होती हैं? फोनीम्स होती हैं जब आप स्पीच में जो आप यूज कर रहे हैं, आप इसको पढ़ोगे कैसे? र, ए, रेन। तो 3 graphemes, 3 sounds, but there are 4 letters. But since this is phonetic class, so हम लोग sounds के ऊपर बात करेंगे, fine. अब यहाँ पर ए आई की साउंड हमारी कैसे हम प्रोड्यूस करेंगे? आपने अपनी टंग को ग्लाइड करना है फ्रॉम मिड टू हाई फ्रंट। बुलाएं, ए, 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 वेरी गुड। टंग को ग्लाइड किया फ्रॉम द मिड टू हाई फ्रंट एंड देन से आउट द साउंड। नेक्स्ट इज डबल ई। डबल ई में आपने टंग को हाई किया, फ्रंट किया और लिप को स्ट्रेच किया आपने। बोलें, डबल ई। इसमें देखें, आपने लिप्स को स्ट्रेच किया, आपकी टंग ग्लाइड की फ्रॉम मिड टू हाई फ्रंट, ऐसे ही है? यस। ओके, आईजीएच। आईजीएच में आपने टंग को मूव करना है फ्रॉम लो फ्रंट टू हाई फ्रंट। आई, आई। आपने देखा आपकी जुबान की मूवमेंट कहाँ जा रही है? आपने लो फ्रंट से हाई फ्रंट की तरफ आपके, ऐसे ही है? थोड़ा सा मुंह खोल के आप प्रोनाउंस करें प्लीज। ऐसे ही है? चलो जी, थैंक यू। नेक्स्ट मैं आपको खुद ही करवा रही हूँ प्रैक्टिस। आप सब लोग अपने माइक्स ऑफ करके साथ प्रैक्टिस करेंगे। अगला लेटर है हमारे पास लेटर बी, और इसकी साउंड आपने कैसे प्रोड्यूस करनी है? इसकी साउंड आपने लिप्स को प्रेस करना है और आपने बर्स्ट ओपन करके वॉइस्ड साउंड निकालनी है। जैसे ड में हमने निकाला था, लिप्स को इसमें प्रेस करके रखें और साउंड को बर्स्ट करके वॉइस्ड साउंड होनी चाहिए। हवा नहीं, उसके अंदर थोड़ी वॉइस भी हो। ब, ब, ब। वेरी गुड। नेक्स्ट इज एफ साउंड है, लेटर एफ की साउंड है। ये बॉटम आपका जो लिप है वो टच करेगा टॉप टीथ को, और एयर को आपने ब्लो आउट करना है। ब्लो आउट, ब्लो जब जैसे हम ब्लो करते हैं ना बलून को, ठीक है, वो वाला ब्लो आउट। एक होता है ना आप अपनी एयर बाहर निकाले मुंह से लिप्स को क्लोज करके, दैट इज समथिंग एल्स। ब्लो करने का अपना एक तरीका होता है। हम एयर कैसे ब्लो करते हैं बलून में, एग्जैक्टली वैसे ही हमने साउंड निकालनी है। बॉटम ऑफ द लिप टचेस द टॉप टीथ और एयर को आपने ब्लो आउट करना है। ओके, द नेक्स्ट इज एल साउंड। एफ के बाद एल आ रही है। इसको आपने कैसे बुलाना है? टंग को टच करवाएं रिज के साथ। आपका रिज जो होता है दांतों के बिल्कुल पीछे जो हार्ड वाली जगह होती है, और इसमें से एयर आपने निकालनी है अराउंड साइड्स। इज इट ओके? द नेक्स्ट इज ज। ज को आपने कैसे बुलाना है? आप अपनी टंग को टच करवाएं रिज के साथ और इसको रिलीज करवाएं वॉइस के साथ। आपकी वॉइस रिलीज होना चाहिए। ज, ज वॉइस्ड होना चाहिए, हवा कम और वॉइस ज्यादा। ज, How ज। can we prevent the impact of species and सॉरी, biodiversity and food web? आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही है। Immediately prevent can we impact
असर होता है स्पीशीज बोले पर बायोडाइवर्सिटी बोले और पर फूड वेब बोले हम इनको कैसे बचा सकते हैं कंट्रोल हेलो इंट्रोडक्शन एंड देयर अवेयरनेस ये माइक जिनके ऑन है प्लीज ऑफ करवा दीजिए ऑर्गेनाइजर मुझे समझ में नहीं आ रहा हु इज ओके नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग बी साउंड इसको आपने जैसे एफ की साउंड बुलाई थी आपने की वो अब वो आपने बगैर वाइब्रेशन की बुलाई थी इस वी की साउंड को आपने एग्जैक्टली वैसे ही प्रोनाउंस करना है बट वाइब्रेशन होनी चाहिए आपकी आवाज के अंदर सारे बुलाएं बिल्कुल एफ में हमने क्या किया था हमें अपने लिप्स क्लोज करके सेंटर में से थोड़ा सा जैसे विसल करते हैं उस तरह की हमने आवाज निकाली थी आप इसको वाइब्रेशन के साथ आप बुलाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली वी की साउंड बन जाएगी ओके नेक्स्ट है ओ ए इसमें आप टंग को जैसे बोट में होते हैं ना हमारे पास स्पेलिंग BOAT बोट के अंदर जो हमारे Boa. स्पेलिंग्स आएंगे नो इट्स नॉट बोआ इट्स OA इज O इसमें आपने टंग को मूव कराना है यस इसमें आपने टंग को मूव कराना है फ्रॉम मिड टू हाई बैक और लिप्स को राउंड करना है बुलाएं ओ ओके नेक्स्ट इज डबल ओ एज इन बुक जैसे हम बुक में बुलाते हैं डबल ओ की साउंड दो जगह होती है लाइक इन मून लाइक इन बुक फाइन और ये लिखा भी 2 टाइम्स जाता है इसी तरह तो आपने खुद उसको चेक करना है कि ये बुक में आ रहा है कि या मून में आ रहा है तो द सेम वे यू विल बी प्रोनाउंसिंग डबल ओ एज इन बुक हम लेके चलेंगे अभी इसको आपने कैसे बुलाना है टंग को हाई करें और बैक करें और लिप्स को लाइटली राउंड कर दें बिल्कुल लाइटली ऊ ऊ ऊ ऊ कॉल आउट ऊ एज इन बुक ओके नेक्स्ट इज ऊ एज इन बूट इसमें टंग को आप हाई करें बैक करें और लिप्स को टाइटली राउंड कर दें हमने डबल ओ जो बुक वाली साउंड है उसमें हमने लाइटली राउंड किए थे यहाँ पर बूट में जो ऊ की साउंड आ रही है उसमें आपने लिप्स को टाइटली राउंड करना है बुलाएं ओके द नेक्स्ट इज आर इसमें टंग को आपने लो किया थोड़ा पीछे लेके गए और मुंह खोल के आपने बुलाया प्लीज बाकी लोग अपने माइक ऑफ कर दीजिए पीछे बच्चों का काफी शोर है ओके इसमें आपने टंग को लो किया बैक किया और माउथ ओपन करें और बोले आर आपने एक चीज नोट की होगी इसमें की आवाज नहीं बहुत आती है आर बहुत कंट्रोल्ड हम बुलाते हैं इसमें आर ओके नेक्स्ट इज डब्ल्यू की साउंड इसमें आपने क्या करना है अपने लिप्स को राउंड करना है और अपनी बैक ऑफ द टंग को ऊंचा करना है थोड़ा बुलाएं वो विश वो इसमें आप कोशिश कीजिएगा वाइब्रेशन कम से कम हो अगली साउंड है हमारी एक्स की वेरी गुड अगली साउंड है हमारी एक्स की साउंड आप के और एस को जब मिलाते हैं ना उसका ब्लेंड होता है जैसे आप केक की साउंड आप बुलाते हैं और की इसमें आपने क्या करना है आपकी टंग जो है वो बैक होती है और फिर एकदम से हिस की आवाज बाहर आती है बोले के की साउंड क्या थी के की साउंड क्या थी और एस की साउंड क्या है दोनों को ब्लेंड करके बुलाएं और आप देखिएगा आपकी मुंह से ना एयर पास होती है वाली जैसे एक्स रे में बुलाते हैं वेरी गुड नेक्स्ट इज वाई की साउंड य इसमें आपने मिडल ऑफ द टंग को क्लोज करें अपने हार्ड पैलेट के साथ हार्ड पैलेट कौन सा होता है मैंने आपको बताया था अपनी मिडल ऑफ द टंग को क्लोज करें अपने हार्ड पैलेट के साथ और बोले ये
Yell. Very good. The next is Z sound. Z लेटर है, इसमें आपने जैसे हमने S की साउंड बुलाई थी, हमने कैसे बुलाया था S की साउंड को, इसके अंदर थोड़ी सी वाइब्रेशन डाल दें एंड देन कॉल आउट, से आउट। नो, देखें आपने साउंड को बर्स्ट करके रोकना नहीं है, साउंड चल रही है, आपने अपना मुंह वापस पोजीशन पे नहीं लेके जाना है, आपने S की साउंड बुलाएं, S की, और इसके अंदर वाइब्रेशन ऐड कर दें। वेरी नाइस, वेरी नाइस। नेक्स्ट इज साउंड। क्वा में आप क्या करेंगे, अपने लिप्स को राउंड करें, टंग को बैक लेके जाए जैसे ख के लिए लेके जाते थे, और एकदम से आपने वो की साउंड बुलानी है, ख की साउंड। इसमें देखिए आपने अभी नोट किया होगा जहां पर 2 लेटर्स इकट्ठे हो रहे हैं, तो जो सिंगल लेटर्स के साउंड्स थे उन्हीं को ब्लेंड करके हम इनकी साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्वा की साउंड के अंदर आपने अपने लिप्स राउंड किए, आप अपनी टंग को बैक लेके गए जैसे आपने ख की साउंड में लेके गए थे सी और के की, और एकदम से आपने डब्ल्यू की साउंड बुलानी है। के की साउंड क्या है, डब्ल्यू की साउंड क्या है, वो। अब एकदम से दोनों को ब्लेंड करके बुलाएं, खुआ 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 खुआ। आपका एंड पे जो लिप्स है ना, आपका माउथ ओपन होना चाहिए, खुआ। ओके, खुआ खुआ एज इन क्विट। नेक्स्ट इज और लाइक इन फोर। फाइन, इसमें आपने क्या करना है, आपने अपनी मिड के जो बैक है, मिड बैक पे जाना है आपने, और अपने टंग को और अपने लिप्स को राउंड करें और बुलाएं ओ। इसमें आर जो है ना, आर कंट्रोल करना है आपने। आर को कंट्रोल करने का मतलब है वो बहुत ज्यादा क्लियर, उसकी आर की साउंड नहीं आनी चाहिए। फाइन, नेक्स्ट इज इसमें आपने टंग को मिड किया, लिप्स को स्लाइटली राउंड किया, और अब बुलाए एज इन टर्न। ओके, ओ डब्ल्यू एज इन काउ। इसको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, टंग को मूव करें लो टू हाई बैक, और लिप्स को राउंड कर दें, आओ आओ। देखें टंग को मैंने लो, पहले आपने टंग को मूव करना है लो टू हाई, और उसके बाद आपके लिप्स हो रहे हैं राउंड, बुलाएं आओ। एक और चीज आपने ख्याल रखना है कि इसमें हवा नहीं आनी चाहिए, ना ही वाइब्रेट करनी चाहिए, प्योर साउंड्स हैं, आओ। नेक्स्ट इज आई की साउंड, ओए ओए ओए। इसमें आपने टंग को मूव कराना है मिड और बैक से, और उसके बाद हाई फ्रंट पे ले आना है, ओए ओए। अब अपनी देखिए मिड बैक पे आती है और साथ ही हाई फ्रंट पे आपकी टंग चली जाएगी। ओके, द नेक्स्ट इज टीएच। इसमें आपने कैसे मूव करना है, आपकी टंग जो है वो रिच को टच करेगी और एकदम से स्लाइड ऑफ कर दें, एज इन नो नहीं, टंग को टच करना है रिच के साथ, अपनी बिल्कुल दांतों की जो पीछे हार्ड पैलेट है ना, वहां पर टच करवाना है और एकदम से स्लाइड ऑफ कर दें। और आपने अब एक और चीज देखिएगा, आपके जो बिल्कुल बैक ऑफ द टंग है ना, प्रेशर वहां से आएगा कि ये हवा आएगी, और साथ ही ये रिज आपका टच नहीं करेगा, टंग आपको एकदम से खुल जाएगी। आप गौर से करें, और अपने ना थ्रोट के नीचे जो आपकी चिन है, इसके नीचे हाथ रखें, आपको फील भी होगा कि आपके पीछे थ्रोट से प्रेशर आता है हवा का, और वो एकदम से स्लाइड करके बाहर आती है। ओके, द नेक्स्ट इज, इसमें आपने टंग को क्लोज करना है बिहाइंड द टॉप टीथ। अपनी टॉप जो टीथ हैं आपके, इसके पीछे टंग को क्लोज करें, और एयर को आपने हुशिस करवाना है, वूश की सूरत में आउट आएगी आपकी एयर, बोले जिसमें हम कहते हैं ना कीप क्वाइट, सारा दिन क्लास में हम बच्चों को करवाते हैं, तो दैट इज, लेकिन थोड़ा सॉफ्ट निकालिएगा, करके नहीं बुलाना है इसको। ओके, टीएच एज इन दैट, ठीक है, हार्ड साउंड है द,
वॉइस्ड है। टीएच की साउंड दो किस्म की होती है, एक वॉइस्ड होती है और एक अनवॉइस्ड होती है। वॉइस्ड के अंदर उसमें आवाज सुनाई देती है, अनवॉइस्ड के अंदर एयर ज्यादा हम शामिल कर देते हैं तो वो थोड़ी सी अनवॉइस्ड हो जाती है और एयर आती है बाहर। अभी जो सामने स्क्रीन पे आपको टीएच नजर आ रहा है दैट इज द साउंड और ये वॉइस्ड है। इसमें आपने टंग को बिटवीन द टीथ लेके आना है और आपने वॉइस्ड एयर निकालनी है। द अपनी जो टंग है वो दोनों दांतों के बीच में लेके आए ऊपर नीचे और इसमें आवाज आनी चाहिए आपकी जब आप ये साउंड बुला रहे हो एयर के साथ। द द द आपने देखा होगा इसमें जो एयर है ना वो बहुत फ्लो में नहीं है, थोड़ी सी प्रेशर की एयर है और आपके ऊपर वाले लिप पे फील भी होती है। द द जिनका थोड़ा सा दांत का आगे पीछे का इश्यू होगा मे बी उनकी एयर पास हो जाए कहीं और से, लेकिन एयर आपने देखा होगा कि इसमें वॉइस्ड एयर होती है, आपकी आवाज आना जरूरी है। और एक टीएच होता है जैसे थम के अंदर थम, उसको अगर आप बुलाएं तो उसमें देखें वॉइस्ड नहीं है, एयर है वो साउंड थम थ थ थ। एनजी एनजी इज साउंड, इसमें बैक आपका जो बैक ऑफ द टंग है इट शुड टच द सॉफ्ट पैलेट और एयर आपने के थ्रू निकालनी है। बुलाएं इसमें ग की साउंड भी बहुत हल्की सी आपकी जो बिल्कुल थ्रोट है ना वहां से निकलेगी, क्योंकि आपने एयर मुंह से एयर को ब्लॉक कर देते हैं तो नाक में जाती है। नाक में आपने एन की साउंड तो बुला ली लेकिन ग की साउंड के लिए हमें थोड़ी सी वॉइस चाहिए, तो उसके लिए हल्का सा प्रेशर आपके पड़ेगा आपकी थ्रोट के ऊपर। आप बुलाएं वेरी गुड। नेक्स्ट इज ईयर, EAR। आपने गौर से देखा होगा तीन को मिलाकर एक साउंड बनी है। EAR जहां पर आपको नजर आएगा इट मींस दिस इज one grapheme and this is one sound, but letters are three and we are not talking about letters, we are talking about sounds. तो ear as in near, इसको हम कैसे बुलाएंगे, इसको हम कैसे बुलाएंगे, टंग को अपनी ग्लाइड करें ear। इसमें क्या होता है आपकी टंग टंग और मुझे जिसने भी ये साउंड बुलाई है बहुत अच्छी आपने क्लियर साउंड प्रोड्यूस की है। मुझे थोड़ा अपनी माउथ मूवमेंट बताएंगी कैसे होगी आपकी टंग की। ईयर ईयर आपकी टंग जो है वो थोड़ा सा थोड़ा नॉर्मल नीचे की तरफ थोड़ी लगेगी, तालू से थोड़ा सा नीचे। ये हाई फ्रंट टू मिड ग्लाइड करती है ना आपकी टंग ग्लाइड करेगी हाई फ्रंट से लेकर मिड फ्रंट तक, ऐसे ही है। एग्जैक्टली ओके नेक्स्ट आप प्लीज नेक्स्ट भी प्रोनाउंस करेंगी। एयर की साउंड AIR, इसको आप कैसे आपकी माउथ मूवमेंट और टंग मूवमेंट आप मुझे बताएंगी इसमें कहां पर है। एयर इसकी आपकी टंग स्टार्ट होती है मिड फ्रंट से और ग्लाइड करती है इनवर्ड, चेक करें। एयर राइट इनवर्ड आपकी ग्लाइड करती है, टंग वापस इनवर्ड हो जाती है, ऐसे ही है। जी बिल्कुल। ओके नेक्स्ट इज और साउंड फाइन। सो इसमें क्या होगा आपकी टंग बैक और सेंटर में आएगी और लिप्स आपके टाइटली स्लाइटली राउंड होंगे, स्लाइटली। श्योर हम श्योर बुलाते हैं ना, और श्योर साउंड्स के साथ ना हमेशा खेला करें, ठीक है, एकदम से अब्रप्टली साउंड्स नहीं निकालते, थोड़ा सा उसको खेला करें साउंड्स के साथ एंड एंजॉय द माउथ मूवमेंट। लास्ट साउंड इज इसमें आपकी टंग जो है वो सेंटर होती है, स्लाइटली हम टंग को ऊपर लेके जाते हैं और लिप्स को रिलैक्स रखते हैं। लिप्स रिलैक्स करें, टंग को सेंटर में लेके जाएं और थोड़ा सा ऊपर लेके जाएं, स्लाइटली रेज, थोड़ी सी टंग ऊपर जाएगी आपकी, ऐसी है। एग्जैक्टली चले थैंक यू। नेक्स्ट चलते हैं हम, फोकस ऑन फोनेटिक्स। चलें म्यूट योर माइक्स ऑल ऑफ यू।
ओके, नेक्स्ट इज फोकस ऑन फोनिक्स। फोनीम्स अभी हमने पढ़ लिए। फोनीम्स क्या होते हैं? फोनीम्स आर द साउंड्स ऑफ लेटर्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स मेक। किसी भी लेटर की साउंड या वो साउंड्स जो 2 या 3 लेटर्स को मिलाकर बोली जाती है एज एन इंडिविजुअल साउंड, वी कॉल देम फोनीम्स। ग्राफीम्स क्या होते हैं? आर द वे वी राइट द फोनीम्स। हम साउंड्स को लिखते कैसे हैं? अब जैसे आपने शोर का वर्ड लिखा, इसमें SURE आपने लिखा, लेकिन URE जो है वो एक ही साउंड है, एक ही ग्राफीम है। तो हम ये नहीं कर सकते कि SU लिख के R लिख के और खत्म करते, लेकिन और में URE आता है। So we teach phonemes and graphemes together in a particular order, which allows children to quickly be able to read simple phonetic books. We also teach the alphabet and letter names, tricky words which cannot be decoded phonetically. बहुत सारे ऐसे words भी होते हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी आगे स्क्रीन पे, जो tricky होते हैं और वो डिकोड नहीं होते फोनेटिकली, ठीक है? उसमें हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स भी होते हैं। सो ये कुछ वेबसाइट्स मैंने सामने लिखी हुई हैं, आप बेशक स्क्रीनशॉट ले लें, यू कैन चेक इट अप लेटर अगर आपने इन साउंड्स के बारे में कोई चीज देखनी है या इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दैट। ओके, नेक्स्ट हम आ रहे हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, एंड दैट इज लर्न द टर्मिनोलॉजी यूजिंग 3 सेंसेस। हमेशा जो फोनिक्स है वो बेस्ड करता है 3 चीजों के ऊपर। आपकी 3 सेंसेस उसमें काम आती हैं, लेटर्स, इंडिविजुअल लेटर्स, ग्राफीम्स एंड फोनीम्स। वो कैसे, वो मैं आपको स्क्रीन पे अभी दिखा रही हूँ। देयर इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑन द स्क्रीन। जी, सबसे ऊपर देखें, आपके पास आपके, लेट मी सी द लेजर पॉइंटर है। ओके, यहाँ पर इट्स सेंस ऑफ हियरिंग, ये आपका बोलना, एंड दिस इज योर सेंस ऑफ साइट। फाइन, आप मतलब तीनों सेंसेस को यूज करके, बिकॉज बोलना और सुनना ये इकट्ठी सेंस है, कोई बोलेगा तो आप सुनेंगे बिकॉज ब्रेन से कनेक्टिविटी है, और देखना जो आपको सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ऊपर अगर आपने देखा हो, यहाँ पर एक साउंड है जो प्रोड्यूस हुई हुई है, देयर इज नो लेटर इन दैट, और यहाँ पर आपकी हेयरिंग और आपकी जो स्पीकिंग है, स्पीच, ये इनेबल है। इट मीन्स फोनीम क्या होते हैं? जो कि आप सुन रहे हैं या बोल रहे हैं। फाइन, तो द वर्ड इज, तो आपने सुना इसको। अब हम आते हैं इन वर्ड्स के लेटर्स के ऊपर, या इसमें कितनी साउंड्स यूज हुई हुई हैं, हम उनके ऊपर आते हैं, एंड वी कॉल दैट ग्राफीम। इसमें आप बोल भी रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं और आप देख भी रहे हैं। सो स्पून के वर्ड के अंदर वी हैव 4 ग्राफीम्स। साउंड्स भी 4 हैं जैसे ऊपर नजर आया, और ग्राफीम्स भी आपके 4 हैं। तो स्पून। और अभी हम लेटर की अगर बात करें तो इसमें सिर्फ यू कैन सी द नंबर ऑफ लेटर्स, इसका कोई ताल्लुक नहीं है फॉर with your phonemes and with your graphemes. So SPOON, there are 5 letters in a word spoon. यहाँ तक सबको क्लियर है फोनीम्स एंड ग्राफीम्स का? विल गो टू डायग्राफ एंड ट्राइग्राफ। अभी जितनी भी साउंड्स हमने प्रैक्टिस की हैं उन्हीं को मैं थोड़ा सेग्रीगेट कर रही हूँ, ठीक है? जो सिंगल लेटर साउंड है वो हमने पढ़ ली। अब हम आते हैं डायग्राफ्स के ऊपर। जैसे आपने CH की साउंड पढ़ी, SH की साउंड पढ़ी, TH की साउंड पढ़ी, NG की साउंड पढ़ी, उनको बुलाते हैं डायग्राफ्स। डायग्राफ्स आर द साउंड्स जो कि 2 लेटर्स को बनाकर एक साउंड बनती है, ठीक है? सो कॉन्सोनेंट डायग्राफ वो होते हैं जिसके अंदर 2 कॉन्सोनेंट्स का होना जरूरी है, बट दे मेक अ सिंगल साउंड। जैसे S and H जब हम इकट्ठा करते हैं, सो इट बिकम्स 1 फोनीम और 1 ग्राफीम बन जाता है, एंड द साउंड इज चेंज एंड इट बिकम्स sh. दिस इज डबल L, सिंगल साउंड। वाउल डायग्राफ्स क्या होते हैं? जिसके अंदर एक वाउल का होना जरूरी है, दोनों भी हो सकते हैं और एक भी, फाइन, एंड दे मेक अ सिंगल साउंड। जैसे हमने रेन के अंदर AI को एज 1 साउंड पढ़ा, एंड दैट इज A एज इन रेन, डबल E एज इन मीट, R एज इन शार, ओय एज इन बॉय। ट्राइग्राफ्स क्या होते हैं? जहां 3 लेटर्स को मिलाकर एक साउंड बनती है। हम साउंड्स के बारे में बात कर रहे हैं, लेटर्स को डिफरेंटली नहीं प्रोनाउंस करते, हम साउंड्स प्रोनाउंस करते हैं। तो जहां 3 साउंड आते हैं, साउंड है आई की, सो इसको बुलाते हैं ट्राइग्राफ।
Trigraph is a 3-letter blend making one sound and it makes the long vowel sound. Long vowel sound basically इस letter I का name है और इसका name क्या है I. So this is IGH as in high, as in sigh, as in night, as in tight. कुछ examples हैं screen के ऊपर आपकी digraphs and trigraphs की. Chain, photo, wheel, shark, knife, ring, 3, queen, duck. उसके बाद हमारे पास कुछ साउंड्स हैं जो कि आपने देखा होगा. अभी हम ये सारी साउंड्स प्रैक्टिस कर चुके हैं आप लोगों के साथ ही. साउंड 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 एंड साउंड. फाइन. सो ये डायग्राफ्स हैं. 2 होंगे तो डायग्राफ होंगे, 3 होंगे तो ट्राइग्राफ्स होंगे. इसके अलावा कुछ साउंड्स ऐसी होती हैं जिसमें डबल कॉन्सोनेंट्स आते हैं. जैसे क्लिफ या बिफ का वर्ड है, इसमें डबल एफ है. इसको हम बुलाते हैं फ्रेंडली लेटर्स. ये जब भी इकट्ठे होंगे तो ये एक दूसरे से फाइट नहीं करते हैं साउंड के लिए. ये एक ही साउंड बुलाते हैं और वो शॉर्ट साउंड ही होती है, बहुत लॉन्ग नहीं जाती है. जैसे हमने ए की साउंड ए आई जब हमने इकट्ठा किया था तो वो लॉन्ग ए बन गया था, जैसे ए का हम नेम बुलाते हैं. लेकिन यहाँ पर जब 2 कॉन्सोनेंट्स व्हेनेवर यू सी 2 consonants together, so they become friendly letters and we call out the way जैसे आप एक consonant को बुलाते हैं, like cliff, biff, mall, roll, beginning, boss, bzz. So buzz as in buzz. नहीं बुलाते, बज़ नहीं बुलाते, मॉल नहीं बुलाते, 2 दफा नहीं हम प्रोनाउंस करते. सो व्हेनेवर यू सी बोथ कॉन्सोनेंट्स, सेम कॉन्सोनेंट्स टुगेदर कमिंग टुगेदर, फाइन. ये बात ज़हन में रखिएगा, सेग्रीगेटेड ना हो, टुगेदर हो, इकट्ठे हो किसी भी वर्ड के अंदर. सो यू कॉल आउट द वे जैसे आप एक लेटर के लिए साउंड बुलाते हैं. फाइन. सो ये वाली साउंड्स आपके, इनको हम बुलाते हैं डबल कॉन्सोनेंट साउंड्स या इनको फ्रेंडली लेटर्स भी हम कहते हैं. ये फ्रेंडली इसलिए होते हैं क्योंकि आपस में झगड़ते नहीं हैं. जैसे डबल एफ की साउंड एट द एंड ऑफ स्मॉल शॉर्ट वाउल साउंड आती है और ये डबल हो जाती है. एल की साउंड जैसे स्मॉल के अंदर हम डबल कर देते हैं, एज इन बेल, एज इन डॉल, एज इन हिल. डबल एन जब आता है जैसे एज इन बिगिनिंग, एज इन कनेक्ट, हम डबल एन 2 दफा एन एन नहीं बुलाते. हम बिगिनिंग नहीं बुलाते, हम कनेक्ट नहीं बुलाते, हम लोग बज़ नहीं बुलाते, हम फस नहीं कहते. सो दीज आर कॉल्ड फ्रेंडली लेटर्स. विल मूव टू द नेक्स्ट. अब हम आते हैं वाउल्स की तरफ. ट्रिकी साउंड्स होती हैं वाउल्स की. ए ई आई ओ यू हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, ये साउंड्स होती हैं. लेकिन वाउल्स की भी बहुत सारी, ऑलमोस्ट 25 साउंड्स होती हैं. ठीक है. ए की साउंड एप्पल में इज डिफरेंट एंड एयरप्लेन इज में डिफरेंट. ई की साउंड एग में इज डिफरेंट एंड ईल में इज डिफरेंट. आई की साउंड इंसेक्ट में डिफरेंट एंड आइसक्रीम में डिफरेंट. ओ की साउंड ऑरेंज में डिफरेंट एंड ओवल में डिफरेंट. U की sound is different in umbrella and is pretty different in unicorn. थोड़ा सा हम sounds को practice कर लेते हैं. कोई volunteer आएगा? Unmute करे mic को जिसने भी आना है. Any of the volunteer please. Yes. Who is there? I'm Sana. समन. ओके समन. Sana. यहाँ पर वाउल ए की 8 साउंड्स हैं. फाइन. अच्छा. Yes. Can you see the screen? जो वाउल ए है, ठीक है. अच्छा, हम लेटर को नहीं देखना. अब आप लेटर अपनी ज़हन से निकाल दें कि हम लेटर ए की बात कर रहे हैं. हम साउंड की बात कर रहे हैं. जो अल्फाबेट ए है एंड दैट इज अ वाउल. फाइन. उसकी बहुत सारी डिफरेंट साउंड्स होती हैं. 8 साउंड्स मैंने इस वक्त स्क्रीन पे आपको सामने दिखाई हैं. आप नंबर 1 से पढ़ना शुरू करेंगे प्लीज. और थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि अपनी साउंड में थोड़ी क्लैरिटी लेके आए, थोड़ा जोर से बोलें, सो दैट वी कुड फील द साउंड एंड वी कुड हियर द साउंड. A as in apple. और ये शॉर्ट ए है. Yes. A Okay. as in father.
as in father, long वेरी A. गुड. As in male, letter name है. A. अब यहाँ पर देखिए मेट के अंदर ए की साउंड ए भी नहीं है, आ भी नहीं है, क्या है? ए, जो नेम होता है लेटर का अपना. Yes. As sure, यस. as in comma. एज इन कॉमा. अब इसमें आ की साउंड आ रही है, कॉमा, बाबा. Yes. ओके, Yes. नेक्स्ट. A as in many. A अब as in इसमें ए की साउंड क्या आ रही है? A. ए, वेरी नाइस. आगे. O as in mall. वेरी गुड. ओ एज इन मॉल. O as in altar. यस, ऑल्टर में देखिए ओ नहीं लिखा हुआ, इट्स ALTER, बट वी कॉल आउट ए एज इन ऑल्टर. Altar. Yeah. A. नेक्स्ट. A as in Mary. मैरी. ओके, वाउल ई पे आ जाए और Yes. थोड़ा जल्दी. E as in get. A as in get. यस. In beta. E as in beta. E as in edict. Addict. नेक्स्ट. As a Shiva. As in यस. model. As in model. मॉडल. ओके. O as in mercy. अ एज इन मर्सी. As हम in मर्सी में देखिए की आवाज आती है, मर्सी. right. Or it may be silent as in life. लाइफ. फाइन. ओके, वाउल आई. I. Yes. नेक्स्ट. यू कैन कंटिन्यू. Yes. अभी जो भी थे यू कैन कंटिन्यू. I as in E as in अच्छा, आई नहीं बुलाना आपने, साउंड. आप पहले वर्ड पढ़ लें. पिट. Pit. ई एज इन पिट. E as a pit. I as in ice cream. I as in life. As a shua. As in America. ओके, नेक्स्ट. आगे बताएं. O as in front. Font. फॉन्ट. ओ. O as in only. O and as in only. A as in some. As a sure motto. ओके, नेक्स्ट. A as in umbrella. अम्ब्रेला. Umbrella. A ये as in साउंड जहां आ रही है ना, आपने उसको प्रेशर दे के बोलना है. ये शुरू में आ रही है, umbrella. शुरू में प्रेशर जाएगा. सेंटर में आ रही है तो सेंटर में प्रेशर देना है आपने, ताकि साउंड क्लियर हो. Okay. Umbrella. U as in brute. U as in union. वेरी गुड. U as in cup. A as in cup. का थोड़ी सी देखें, एज की साउंड जहां आती है ना, थोड़ी सी एयर आती है उसमें. ठीक है, Yes. थैंक यू. Okay. ओके, द नेक्स्ट इज लेट्स प्ले विद द साउंड. ए आई की साउंड हमने पढ़ी. एज इन एयर, ट्रेन, रेन, पेन. जहां पर ए वाई आएगा वो भी ए की साउंड है, एंड दैट इज प्ले, क्ले, ट्रे. एंड देन नेक्स्ट इज पापा एंड व्हाट. श्वास साउंड आ गई. डबल ई के अंदर एज इन सी, एज इन बी, एज इन ई, ट्री. ई ए जब इकट्ठा होगा दो किस्म की साउंड्स देता है. एक एज इन ईट, एज इन बीट, एज इन सीट, एज इन रीड, यानी ई की साउंड. ई और ए जब इकट्ठे होते हैं, सो they become they sound out one phoneme, and that is e. But in many words ea is pronounced as bread and red. A की sound आ जाती है. double o as in look, as in book, as in cook, and double o as in two, as in zoo. Next we have ow as in shout, as in out, as in loud. ओ यू का एक और कॉम्बिनेशन है, दैट इज सूप, दैट इज ग्रुप. सूप, ग्रुप. ओ डब्ल्यू
as in cow, as in bow, as in now, as in gown. And OW as in bow, as in elbow, as in pillow. OI as in toy, as in boy. AY tray, play. TY as in party. Y जब N पे आ गया, so as in party. E की sound. मतलब इसको लेटर E का नेम आ जाएगा जब Y, T and Y आ जाते हैं. Fine. WH as in what, as in where. And then in the end, TH as in bathe, as in birthday. And then TH as in this, as in that. उसके बाद हमारे पास एक बहुत अच्छा रूल मैं आपको सिखाने लगी हूँ, AE. आपने ए देखा है, इसके बाद एक लाइन लगी हुई है और फिर ई है, उसको हम बुलाते हैं लॉन्ग ए या मैजिकल ई. जब भी आप कोई वर्ड ऐसा देखें, जैसे मेक का वर्ड स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, फेड का, अगर हम लोग मेक का वर्ड देखें तो द फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट, नेक्स्ट इज वाउल, नेक्स्ट इज कॉन्सोनेंट और एंड पे ई लगा हुआ है. मैंने आपको स्टार्ट में बताया था हर वर्ड एक रूल के तहत होता है और वो रूल सिर्फ कॉन्सोनेंट और वाउल्स का रूल होता है. CVC हो सकता है, CVVC हो सकता है, CVVVVC हो सकता है और उसके आगे हमने ई, आपने देखा होगा मैंने स्मॉल लगाया है. सो ये ई जब एंड पे आएगा, CVC का कोई वर्ड हो और उसके एंड पे ई आए तो वो रूल क्या होता है, उसको हम बुलाते हैं मैजिकल ई या उसको हम कहते हैं साइलेंट ई. फाइन. सो व्हेन द लेटर ई इज एडेड at the end of a word with a short vowel plus consonant, so it makes the vowel say its name. अब मुझे बताएं यहाँ पर जो आपका ई है इसको तो हमने लगा दिया, फाइन, एज अ रूल. ई से पहले कौन सा वाउल लगा हुआ है इसमें? लगा हुआ है. फाइन. जब मैंने ई एंड पे लगा दिया तो इस ए की साउंड, लेटर ए की साउंड आपने लॉन्ग प्रोनाउंस करनी है और ई की अपनी साउंड जो है वो साइलेंट हो जाएगी. क्या बन जाएगा? डिवाइस भी ऑन, पता नहीं क्या डिवाइस अभी साइड चलते रहते खुद बंद हो गई, अभी ज्वाइन हुए हुए. एक्सक्यूज मी. ओके, कोई इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? CVC एंड ई. जब भी किसी CVC लेटर, CVC वर्ड के एंड पे ई की साउंड हम ऐड करते हैं और उससे पहले जो भी वाउल लगा होता है उस वाउल की शॉर्ट साउंड नहीं बुलाते, उसका हम नेम कॉल करते हैं. अभी एक वर्ड है मेक. फाइन. इसमें अगर आप ध्यान दें तो ए की जो साउंड है वो ए नहीं है, लॉन्ग ए है, यानी नेम है, और ई इज अ साइलेंट, लाइक मेक एंड फेड. इसकी एक छोटी सी पोएम है अगर आप वो याद रखें, और वो है हेलो माय नेम इज मैजिक ई, a wave of my wand and you will see the vowel before me has to change. I made the vowel say its name. तो एक छोटी सी प्रैक्टिस है. कौन करेगा जल्दी से? कोई भी अनम्यूट करें अपना माइक जिसको अभी तक चांस नहीं मिला. ये क्या लिखा हुआ है? Had. चलिए जी, ई लगाया तो क्या बना? Head. हेड. कैसे बना? बिकॉज ई इज मैजिकल ई. जब भी वो CVC वर्ड के एंड पे आएगा खुद साइलेंट हो जाएगा, लेकिन अपने से पहले वाले वाउल को पावरफुल कर देगा और वो अपना नेम कॉल करेगा. और इस ए का जो लेटर ए यहाँ पर है, इसका नेम क्या है? ए. सो हम इसको कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं? एट. हेट. ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? Can. कैन. 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 ओके, ब्लेंड करके इसको मुझे सेगमेंट कर दें. फर्स्ट लेटर की साउंड क्या है? Head. फर्स्ट लेटर की साउंड क्या है? थ. एंड सेकंड लेटर? Can. ओके, कैन के एंड पे ई लगा दिया. हाउ विल यू से आउट? कैन. Can. थर्ड वर्ड? मैन. ओके, ई लगा दिया. मेन. अच्छा, आप लोगों को एक छोटी सी असाइनमेंट में देने लगी हूँ, आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा उसका. ठीक है, आपको स्क्रीन पे कुछ ग्राफीम्स और फोनीम्स नजर आ रहे हैं. जैसे एक पहला वर्ड है आपके पास सिट, इसके अंदर 3 ग्राफीम्स हैं और 3 फोनीम्स हैं. ऐसे ही है ई, सिट. ल, ए, लेग.
of, mop, can, eat, fit, frog, frog, tent. फाइन, डिफरेंट साउंड्स थी और एक ही ग्राफीम था और एक ही साउंड थी, हर लेटर की अपनी इंडिविजुअल साउंड थी। लेकिन यहाँ पर अगर हम आए CH, जैसे मैंने आपको बताया CH इज वन फोनीम, एक साउंड है। फोनीम और साउंड आर सेम, लेकिन ग्राफीम भी ये एक ही है। सो ग्राफीम जो आप देख रहे हैं और फोनीम जो आप पढ़ रहे हैं, अब चिल है ये वर्ड, CHILL। फाइन, हम लेटर्स की बात अब नहीं करेंगे, हम साउंड्स की बात करेंगे। तो इसमें कितनी साउंड्स हैं? 3, E, chill. Next, or, fought, fought, duck, act, that, ate, wait, act, shed, अब इसमें देखिए ईयर आ गया, ईयर वाली साउंड जो मैंने आपको भी पढ़ाई, beard, strong, church। ये आपका एक असाइनमेंट है, छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज इसका। इसको आपने करना कैसे है, ग्राफीम मैपिंग करनी है। ये कुछ वर्ड्स हैं और यहाँ पर मैंने आप लोगों को यहाँ पर देखें वर्ड लिखा है। जैसे फर्स्ट वर्ड मैंने ले लिया शिप, इसमें ग्राफीम्स कितने हैं मैंने ब्रेक कर दिए, शिप। और साउंड्स कितनी है, साउंड्स की जगह आप फनीम का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपने ये मुझे करके स्क्रीनशॉट करके एंड आई एम ऑर्गेनाइजर विल टेल यू हाउ टू शेयर दैट। सो दिस इज अ शॉर्ट असाइनमेंट ऑफ योर्स। ये हमारा सेशन नेक्स्ट टाइम भी चलेगा और इस हम ग्राफीम्स तक आ गए हैं। इसके बाद हम लोग ब्लेंडिंग एंड सेगमेंटेशन पे जाएंगे, सिलेबल्स पे जाएंगे and then correct pronunciation पे जाएंगे and then we'll be sum up with our session. Fine. So ये जो sounds हैं इनको आप थोड़ी practice कीजिएगा। अब assignment मैंने आपको दे दी है, इसका screenshot please आप ले लें। Is there any question that you want to ask me, because I already took 17 minutes, so you need to tell me, is there anything that you want to ask? जी मैम, ये बताएगा ये असाइनमेंट किस डे तक करनी होगी? नेक्स्ट लेक्चर हमारा कब होगा? नेक्स्ट आई गेस जून में मेरा प्लान है, और मे बी उससे पहले हो जाए, बिकॉज अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि बिकॉज सिंस मेरा सेशन कंटिन्यू है, फाइन, हमारा एक ही टॉपिक है जो दोनों उसमें चलेगा सेशंस के अंदर। सो लेट्स सी कि हमने उसमें कितना ब्रेक दे सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा बीच में, यू कैन ऑलवेज आस्क इन दैट ग्रुप और मैं आपको रिप्लाई बैक कर दूंगी व्हेनेवर आई फील कि मुझे अभी आपको पता है हम सारे जॉब करते हैं, सो यू नो वी नीड टू सेट आवर टाइमिंग्स एज वेल। तो जी अभी मैम तक बिल्कुल, अगर आपको बस ये कुछ पूछना समझ था में नहीं आया, असाइनमेंट कब है, किस दिन तक करनी होगी, बस यही। whenever बाकी you समझ feel तो आ गया। comfortable, whenever you feel चलें comfortable, ठीक है, आप आराम से टाइम ओके में मैम, कुछ थैंक यू। पूछना है आपने, कोई फीडबैक देना है फॉर द नेक्स्ट क्लास और समथिंग लाइक दैट। नहीं मैम, बहुत एंजॉय किया लेक्चर को आपके। थैंक यू सो वेरी मच जी। मैम प्लीज ओवर टू रिपीट कर आइडियाज। जी जी, असाइनमेंट दोबारा दे देंगी जरा, मेरा मैं स्क्रीनशॉट इस आपको वक्त स्क्रीन पे ना शेयर कर देती हूँ एक दफा फिर, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए। Here it goes. Oh, sorry. I need to go back. इस असाइनमेंट के कोई मार्क्स नहीं है, बट एटलीस्ट चलें, आपको थोड़ा सा यू विल फील अचीव्ड कि आप इसको अच्छी तरह कर लेते हैं। लेकिन ये साउंड्स आपने ना बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अपने आगे शीशा रखना है और एक पेपर रखना है और अपनी अपनी माउथ मूवमेंट को ना, जो आपके ओरल ऑर्गन्स हैं मुंह के अंदर, जिसमें दांत है, आपके टंग है, आपका पैलेट है। फाइन, पैलेट तो मूव नहीं करता, लेकिन ऑफ कोर्स हमारा माउथ और जॉ को हम थोड़ा सा मूव, टीथ को करवाते हैं, और उसके बाद हमारी टंग। आप ये देखिएगा कि आपकी पोजीशंस कैसे हो रही हैं, जुबान कहाँ जाती है, कौन पैलेट की किस हिस्से को टच करती है, आवाज निकलती है, उस आवाज में एयर होती है कि साउंड होती है। अच्छा, अब मुंह बंद करके नाक के थ्रू तो नहीं निकल रही। सो ये थोड़ा सा इसको ना ऑब्जर्व कीजिएगा। ठीक है, आपने ले लिया स्क्रीनशॉट? मैम
जी जी यस मैम, लेकिन इसमें करना क्या होगा, आंसर क्या मतलब? सॉरी वो भी एक दफा जिस पे सारे साउंड्स थे पूरी स्लाइड पे, वो वाली स्लाइड शेयर कर दें 1 मिनट। कौन सी वाली? जिस पे सारे साउंड्स थे, एस से अच्छा। स्टार्ट हो रहे थे जी। 1 second, let me go back. Kindly share the presentation of today's session. That will be very helpful when we are going to discuss ourselves. Okay. It will be very हमारे पास अभी कौन थे? डॉक्टर साहब आप हैं? मैं आपको दिखा रही हूँ, प्लीज आप एक दफा देख लीजिए इनको। नजर आ गया आपको? Yes, we got it. But really, it is highly appreciated if your presentation will be shared in the group. So we, because some people are very good in technical, or some are not. So Okay. Is this Suhail Sab? Suhail Sab, let me discuss with my organizers, because we need to compile it in a short form or maybe in a PDF form, so that could be easily understandable by common people, because I've added many of the terms and many of the links in my presentation. What I can do for you, I can sum up with some documented form and very basic information that could be beneficial for everyone. So, any book, if you want to recommend any book, so you can just. I'll do send that. it. Yes, I can do that. Yeah, that would be great help for all of you. That's great. That's great. So by doing the assignment, being all we are the fully engaged in the whole week. So if you look back your task, it would be highly appreciated if we have your material in front of us while doing your task and in the form of assignment. Thank you. Thank you very much. Thank you so very much जी. Very nice of you. Thank you very much. हमारे ऑर्गेनाइजर कहाँ हैं? प्लीज आ जाइए, आप भी वाइंड अप कराएं सेशन। चलिए जी, आई थिंक दे हैव ऑलरेडी गॉन। मैंने आप लोगों का बहुत टाइम ले लिया एंड आई होप ये जो हमने 23 मिनट्स एक्स्ट्रा लिए ये बिल्कुल जाया नहीं गए हैं। और कोई लास्ट बात किसी ने कहनी हो, बिकॉज आई एम जस्ट गोना स्टॉप शेयरिंग नाउ। थैंक यू वेरी मच जी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मुलाकात होगी। Thank you so much. Thank you so much. दाफिज दाफिज।